سال تھا 1953، جگہ تھی ایران۔ نئے نئے الیکشن ہوئے تھے اور لوگوں کے ووٹ سے جیت کر آیا تھا ایک نیا لیڈر کہ جس کا نام تھا محمد مصدق۔ محمد مصدق پردھان منتری بننے کے بعد جو پہلا کام کرنا چاہتے تھے وہ تھا ایران کا تمام آئل نیشنلائز کرنا، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب تک ایران کے تمام تیل پر ایک اینجلو ایرانین نام کی برٹش کمپنی کا ہی کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ مگر اب محمد مصدق نے سوچ لیا تھا کہ بہت ہو چکا، اب ایران کے تیل کو نیشنلائز کرنا ہی پڑے گا تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ برٹش کمپنی کی بجائے ایران کے اپنے لوگوں کو ملے۔ لیکن جیسے ہی محمد مصدق نے یہ کرنے کا فیصلہ کیا، برٹین کی طرف سے ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں۔ ایران کے نئے پردھان منتری کو میسج بالکل کلیئر تھا کہ اگر باز نہیں آئے اور اپنے اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹے تو اس کا انجام بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ مگر محمد مصدق بھی بھلا کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے، وہ اپنے اس منصوبے پر اڑے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برٹین کی خفیہ ایجنسی نے فوراً امریکہ کی خفیہ ایجنسی مطلب CIA سے کانٹیکٹ کیا اور ان دونوں کے بیچ یہ طے پایا کہ لوگوں کے ووٹ سے چنے گئے ایران کے اس نئے پردھان منتری کی حکومت کا تختہ پلٹ کیا جائے گا۔ CIA کی طرف سے اب فوراً اپنے مڈل ایسٹ بیورو چیف کرمٹ کو ایران کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ CIA کا یہ چیف ایران پہنچ کر خفیہ طور پر اپنا تمام پیسہ وہاں کے بہت سارے نیتاؤں اور دھارمک گروؤں پر لٹانے لگتا ہے۔ اس پیسے کے بدلے میں CIA کو ان لوگوں سے ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ محمد مصدق کے خلاف عام پبلک میں جا کر زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے۔ اس کے بعد ایران کی سڑکوں پر جو کچھ بھی ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ سب سے پہلے تو وہاں کے جو دھارمک گرو تھے ان کے اوپر بہت سارے فیک اٹیکس ہونے لگے، جن کا الزام سیدھے طور پر محمد مصدق کے اوپر لگایا جانے لگا۔ اس کے بعد جگہ جگہ پر پردرشن ہوئے جو بہت جلد ہی دنگے فساد میں بدل گئے، دکانوں کو آگ لگائی جانے لگی، پولیس پر پتھر برسائے جانے لگے اور تو اور ادھر ادھر لوگوں کا قتل ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے تہران کے اندر حالات بے قابو ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی محمد مصدق کو استعفیٰ دینا پڑا۔ استعفیٰ دیتے ہی اب ایران کی یہ جو گدی خالی ہو گئی تھی، اس پر فوراً ہی امریکہ اور باقی ویسٹرن پاورز کی طرف سے ایک نئے لیڈر کو بیٹھایا گیا جس کا نام تھا محمد رضا پہلوی۔ جبکہ استعفے کے بعد محمد مصدق کے اوپر باقاعدہ ایک کیس چلایا گیا اور پھر ان کو سزا سناتے ہوئے باقی بچی ہوئی پوری زندگی کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ویسے تو آپ لوگوں کو یہ کہانی کچھ سنی یا دیکھی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اتہاس میں اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا یہ واقعہ کوئی اکلوتا نہیں ہے، بلکہ پچھلے 100-150 سال کا پورا اتہاس امریکہ کے اس طرح کے کاموں سے بھرا پڑا ہے۔ امریکہ نے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ وقتوں پر جتنی زیادہ حکومتوں کے تختہ پلٹ کیے ہیں ان کو شاید آج انگلیوں پر بھی نہیں گنا جا سکتا ہے۔ اتہاس کے اگر کچھ اہم اور مشہور معاملوں پر ہی نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو یہ سب کچھ شروع ہوا تھا 1893 سے۔ ہماری یہ کہانی ہوائی سے شروع ہوتی ہے کہ جب امریکہ نے پہلی بار دنیا کے کسی علاقے میں حکومت کا تختہ پلٹ کیا تھا۔ ہوائی اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا چھوٹا سا علاقہ ہے کہ جو دنیا سے کافی الگ تھلگ سمندر میں پڑا ہوا ہے، امریکہ سے لگ بھگ 3500 میل کی دوری پر ہے۔ بات یہ تھی کہ کچھ وقت پہلے ہی امریکہ سے بہت سارے مشنریز اسی ہوائی کے علاقے میں آ رہے تھے اور یہاں پر عیسائی دھرم کا پرچار کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ انہوں نے یہاں پر بڑے لیول پر زمینیں خریدی اور پھر وہیں پر شوگر فارمنگ شروع کر دی تھی۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے زیادہ تر شوگر تو امریکہ کی طرف ہی ایکسپورٹ ہو جاتی تھی اور جو لوکل لوگ تھے ان کو اس کا بہت کم ہی فائدہ ملتا تھا، جس کی وجہ سے اب ہوائی کی جو رانی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کی یہ جتنی بھی شوگر کمپنیز ہیں یا پھر اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ویاپاری ہیں ان کے اوپر الگ الگ طرح کی پابندیاں لگائی جائیں تاکہ کسی طریقے سے لوکل لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکے۔ مگر جیسے ہی ہوائی کی رانی نے اس منصوبے کی طرف قدم بڑھایا، فوراً ہی امریکہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے شوگر ملز کے جو مالک تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد ہی امریکہ نے اپنے بہت سارے جنگی جہاز ہوائی کی طرف بھیجے اور پھر ہوائی کے کچھ لوکل لوگوں کی مدد سے امریکہ نے یہاں پر تختہ پلٹ کروا دیا، مطلب رانی کو اتار دیا گیا اور وہاں ہوائی میں موجود اپنے ہی بندوں میں سے ایک بندے کو گدی پر بیٹھا دیا گیا۔ یہ اتہاس میں کسی دوسرے علاقے کی حکومت کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی یا پھر کسی دوسری حکومت کے تختہ پلٹ کرنے کی امریکہ کی طرف سے پہلی کوشش تھی جو پوری طریقے سے کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ اسی لیے تو اب امریکہ کے دماغ میں اس کا مزہ چڑھ چکا تھا۔ اب تو امریکہ نے ہر تھوڑے وقت کے بعد ہی باہر کے علاقوں میں بیٹھی ہوئی حکومتوں کے معاملوں میں ٹانگ اڑانی شروع کر دی تھی یا پوری طریقے سے ان کی حکومتیں ہی الٹانی شروع کر دی تھی۔ اب امریکہ آنے والے سالوں میں لگاتار ایک کے بعد ایک دنیا کے کئی دیشوں میں تختہ پلٹ تو کر رہا تھا اور اپنی مرضی کے نئے کٹپتلی حکمران بھی بیٹھا رہا تھا، مگر خاص بات یہ تھی
थी कि अभी अमेरिका ये सब कुछ अपने नीचे मौजूद जो आसपास के देश थे वहीं पर कर रहा था, जबकि बाकी बची हुई दुनिया के जो समुद्र के पार थी वो अमेरिका के तख्ता पलट से महफूज रहा करती थी। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया में सब कुछ बदल गया। अमेरिका दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर उभरा और साथ ही उसको एक बहुत बड़ा और ताकतवर दुश्मन भी मिला कि जिसका नाम था यूएसएसआर, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बजाय पूरी दुनिया पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि उसके अब गोल्स और टारगेट्स सब कुछ बदल चुके थे। इस पीरियड में 1953 में सबसे पहला शिकार तो ईरान ही हुआ, जिसका जिक्र हम बिल्कुल शुरू में ही कर चुके हैं, जबकि ईरान के बाद अगले ही साल 1954 में अमेरिका ने बिल्कुल ईरान वाला मेथड ही अपने पड़ोसी में मौजूद एक देश ग्वाटेमाला में भी अपनाया। यहाँ पर भी जो सूरत हाल थी वो कुछ ईरान की ही तरह थी। यहाँ पर एक लीडर था कि जो लोगों के वोट से चुनकर आया था और उसने आने के बाद अमेरिकन कंपनीज पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसके देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो रेल रोड नेटवर्क है, इन तमाम चीजों पर अमेरिकन कंपनीज ने कब्जा कर रखा है। और तो और इस लीडर ने अब अपने देश के अंदर से बनाना कंपनीज से जमीनें लेकर आम लोगों को देनी भी शुरू कर दी थी। अब बनाना इंडस्ट्री में भी ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज की ही इन्वॉल्वमेंट थी, तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों को अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बिल्कुल वही हुआ जो ईरान में हुआ था, मतलब अमेरिका की तरफ से CIA को हुक्म दिया गया कि यहाँ की हुकूमत को गिरा दिया जाए। मिशन पर काम शुरू किया गया और CIA की तरफ से अब इस देश के जो कुछ रिटायर्ड फौजी थे उनको हथियार सप्लाई किए गए और कुछ प्राइवेट लोगों को भी हथियार सप्लाई किए गए, और साथ ही साथ बड़े लेवल पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया। जिन लोगों को हथियार दिए गए थे उन्होंने अब हुकूमत या हुकूमत से जुड़ी हुई चीजों पर हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि बहुत कम वक्त के अंदर ही पूरे देश के अंदर हालात बेकाबू हो गए। न चाहते हुए भी देश के लीडर को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके इस्तीफा देते ही अमेरिका ने प्लान के मुताबिक फौरन ही देश की गद्दी पर अपने मतलब का एक नया हुक्मरान बैठा दिया। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अमेरिका तो तख्ता पलट करके हट गया, मगर इस देश के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात बन गए। दंगे, फसाद, कत्ल, लूटमार, हर चीज आम हो गई। नतीजा ये हुआ कि उन हालात से ये देश आज तक भी नहीं उभर पाया है। उस तख्ता पलट की वजह से इस देश के अंदर लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद जो देश अमेरिका का अगला टारगेट बना वो था कॉन्गो के जो अफ्रीका के बीच में मौजूद है। ये 1960 और 61 के दौर की बात है कि जब ये देश नया नया बेल्जियम से आजाद हुआ था। देश के अंदर इलेक्शन हुए और यहाँ के लोगों ने लुमुम्बा को अपना नया लीडर चुना, मगर यहाँ पर अमेरिका को दो परेशानियां दिखाई दी। पहली तो ये कि कॉन्गो का ये नया लीडर दरअसल एंटी वेस्ट था, और आपको पता होना चाहिए कि ये वो दौर था कि जब ऑलरेडी दुनिया में USSR और USA के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक ऐसा देश था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल था, खास तौर से उस यूरेनियम से मालामाल था कि जो न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल होता है। बस कॉन्गो को टारगेट पर लेने के लिए ये चीजें अमेरिका के लिए काफी थी। फौरन ही CIA को ऑर्डर दिया गया। CIA दस्तूर के मुताबिक अपने काम पर लग गया। भरपूर पैसे, असर और जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता था हर चीज का इस्तेमाल किया गया, और आखिर में कामयाबी हासिल करते हुए इस देश के अंदर भी हुकूमत का तख्ता पलट कर ही दिया गया। मगर जाहिर है ये सब कुछ यूं ही तो नहीं हो गया था, बल्कि ऐसा करने में बेशुमार लोगों की जानें गई थीं, और तो और इस देश के लीडर तक को कत्ल कर दिया गया था। आगे बढ़ें तो इसके बाद नंबर आता है वियतनाम का। ये 1963 के आसपास की बात है कि जब वियतनाम दो हिस्सों में बटा हुआ था। नॉर्थ वाला जो इलाका था वो कम्युनिस्ट था, और जो साउथ वाला इलाका था वो प्रो वेस्ट हुआ करता था। अब मामला ये था कि ये जो साउथ वाला इलाका था अमेरिका हर हाल में इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, जबकि इस इलाके का जो लीडर था उसकी पकड़ अपने इलाके पर कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने यह फैसला किया कि क्यों ना यहाँ पर भी एक तख्ता पलट करवाया जाए और एक नए लीडर को बैठाया जाए। तख्ता पलट करवाया गया और इस बार वियतनाम के अंदर ये काम करवाने के लिए एक मिलिट्री जनरल को चुना गया। मगर यहाँ पर अमेरिका से जो एक बड़ी गलती हुई वो ये कि इस तख्ता पलट में यहाँ के जो लीडर थे उनको ही कत्ल कर दिया गया, जबकि ये दावा किया जाता है कि शायद खुद CIA ने भी उनको कत्ल करने का ऑर्डर नहीं दिया था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका अगले 10 सालों
के लिए वियतनाम की जो मशहूर जंग है उसमें फंस गया। इस जंग के आखिर में अमेरिका को न सिर्फ बड़ी हार का सामना करना पड़ा बल्कि हद से ज्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राजील के अंदर भी अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया और वहां पर अपनी पसंद का लीडर बैठाया, और उसके बाद अपने नीचे पड़ोसी में मौजूद पनामा के अंदर भी हुकूमत का तख्ता पलट करवाया। यहाँ पर ताकत के जरिए से न सिर्फ मिलिट्री को ही क्रश किया गया बल्कि यहाँ का जो डिक्टेटर था उसको भी अरेस्ट किया गया और केस चलवाकर उसको 40 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद और आगे बढ़ें तो कहानी एक बार फिर से हमको मुस्लिम दुनिया की तरफ लेकर आती है। ये बात है 1988 और 89 के आसपास की कि जब यूएसएसआर और अफगानिस्तान की जंग चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर जहां एक तरफ जो सोवियत संघ है वो प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका सोवियत संघ को यहां से निकालने के लिए यहाँ के जो मुजाहिदीन हैं उनको सपोर्ट कर रहा था। और सपोर्ट करने का तरीका ये था कि करोड़ों और अरबों डॉलर्स पड़ोसी में मौजूद पाकिस्तान को दिए जाते थे। पाकिस्तान फिर इन्हीं पैसों के जरिए से अलग अलग तरीकों से अफगान मुजाहिदीन की मदद किया करता था। आखिर में अमेरिका की जीत हुई, मतलब यूएसएसआर को यहाँ से भागना पड़ा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ वक्त के बाद ही यही अफगान मुजाहिदीन के जो अभी तक अमेरिका के लिए हीरो हुआ करते थे ये तालिबान और अलकायदा में बदल गए, और अगले चंद सालों के अंदर ही फिर अमेरिका इन्हीं ग्रुप से लड़ाई करने के लिए अफगानिस्तान में वापस आया। और फिर अमेरिका और तालिबान की जंग की वजह से अमेरिका का क्या हाल हुआ, वो किस तरह से तबाह बर्बाद हुआ, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साल 2003 आता है और इस बार अमेरिका का टारगेट था मिडिल ईस्ट का मशहूर देश इराक और उसका लीडर सद्दाम हुसैन। यहाँ पर अमेरिका कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ में लेता है और फिर खतरनाक केमिकल वेपन्स का बहाना बनाकर इराक के अंदर घुस जाता है। पहले तो सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराया जाता है, फिर अमेरिका को ही सपोर्ट करने वाले लोगों के जरिए से एक नई हुकूमत को वहाँ पर कायम किया जाता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारी चीजें कामयाब नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके बाद इराक के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाती है। ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों तक का जन्म हो जाता है और फिर इराक के अंदर वो कत्लेआम और उठापटक शुरू होती है कि जो शायद आज तक भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकी है। आगे बढ़ें तो अब हमारी इस लिस्ट में अगला नाम लीबिया का आता है। ये साल 2011 की बात है कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ। लीबिया के अंदर लीडर मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। जो मुअम्मर गद्दाफी पिछले कई सालों से लीबिया के ऊपर राज कर रहे थे। प्रदर्शन तो हो ही रहे थे, मगर इन तमाम प्रदर्शनों के बीच में दूर बैठे हुए अमेरिका को एक मौका नजर आया। ये मौका था दरअसल लीबिया के उस लीडर मुअम्मर गद्दाफी को गद्दी से हटाने का, कि जो लंबे वक्त से ही पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली लीडर के तौर पर जाना जाता था। बस फिर क्या था, अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लीबिया के ऊपर अटैक किया। हालात ऐसे बने कि लीडर मुअम्मर गद्दाफी को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद लीबिया के अंदर वो सिविल वॉर शुरू हुई कि जिसने पूरे लीबिया को बर्बाद करके रख दिया। वो लीबिया देश के जिसके शहर, जिसकी सड़कें और जिसका माहौल कभी यूरोप के एडवांस शहरों की तरह दिखाई दिया करता था, आज के दौर में दो टुकड़ों में बटा हुआ है। सिविल वॉर आज तक जारी है और हालात इतने बुरे हैं कि अगर उसको दुनिया के सबसे बर्बाद और सबसे खौफनाक देशों में से एक माना जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो इतिहास के सिर्फ चंद मशहूर मामलात थे, वरना अमेरिका ने इतिहास में जितने ज्यादा देशों के अंदर दखल अंदाजी की है या वहाँ की हुकूमतों के तख्ता पलट किए हैं, उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि जिसको शायद हमारी इस एक वीडियो में मेंशन किया भी नहीं जा सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई मशहूर और अहम केस भी हमसे छूट गया है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।